थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग आवर वीडियोस। आज हम लोग एड्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। जैसा कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है, इससे हमने ये टॉपिक चुना। एड्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका पॉजिटिव एजेंट है HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो कोई भी फॉरेन एजेंट से डील ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि हर 3 एड्स की पेशेंट में एक आदमी को ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट। लोगों को लगता है कि HIV और एड्स एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। HIV एक वायरस है और एड्स एक बीमारी। HIV वायरस के जरिए जो बीमारी होती है, उसका जो सबसे एंड स्टेज होता है, उसे एड्स कहते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पूरी दुनिया के मुताबिक भारत तीसरे स्थान में आता है सबसे ज़्यादा एड्स की पेशेंट की गिनती में। भारत में सबसे ज़्यादा ये बीमारी उन लोगों में देखी गई है जो माइग्रेंट वर्कर्स है, ट्रांसजेंडर पीपल है, सेक्स वर्कर्स है, ट्रक ड्राइवर्स है और जो ड्रग अब्यूजर्स है, जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग अब्यूज करते हैं। The modes of transmission of HIV virus is from person to person by 3 main modes. First is by sexual activity. Any act of unprotected sexual intercourse, vaginal, oral or anal, with an HIV infected person exposes the unprotected partner to the risk of developing the infection. The transmission from male to female is more than from female to male, as the concentration of the virus is more in the semen, and in females the area of exposure is more. Then the people having multiple sexual partners are at a higher risk of developing this infection. Second is by blood contact. By contaminated blood transfusion, people can develop HIV infection. By whole blood transfusion or by the parts of blood like plasma, factor 8 and 9 or platelets. Then in intradermal drug abusers who share the same syringes and inject needles, contaminated needles, or other skin piercing instruments like tattooing or ear piercing, these can also lead to the HIV infection. Third is the transfer from mother to child. So the maternal transfer of the infection to the fetus can be through placenta or during delivery or by breastfeeding. These can also be prevented by taking antiretroviral drugs or doing a cesarean section before labor, or by preventing and stopping breastfeeding. Then HIV infection, once the person is infected, the person is infected throughout the life. Clinical features of HIV infection, HIV के लक्षण। HIV हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और उसको कमज़ोर कर देता है, हमारे प्रोटेक्टिव इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करके। इनिशियली देयर माइट नॉट बी सच ओवर्ट सिम्टम्स फॉर अप टू 5 years, and therefore the person is asymptomatic but can spread the infection to other people. There might be mild illness like fever, sore throat and rash, but mostly the person might be asymptomatic. Once the damage to our immune system has occurred, there might be symptoms like unexplained diarrhea for more than a month, malaise, fatigue, थकावट होना, अस्वस्थ लगना, then weight loss of more than 10% of the body weight, fever and night sweats. AIDS is the end stage of HIV infection, and many opportunistic infections and cancers occur at this stage. Death is due to untreatable and uncontrolled opportunistic infections like TB, Kaposi sarcoma, many fungal infections like Candida esophagitis, or parasitic infections like Pneumocystis carinii pneumonia, and this is all due to as there is a drop in the T cell count. There is an increased link between HIV and TB,
and the people suffering from HIV are at a 30 to 50% higher risk of developing tuberculosis. आज हम बात करेंगे एड्स को लेकर कई सारी गलत धारणाएं जो समाज में फैल रही है उस बारे में. That is some of the myths and facts about AIDS. HIV infection does not always cause AIDS. HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जरूरी नहीं कि हर एक इंसान में एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करे. ये बीमारी सिर्फ उन लोगों में दिखाई देती है जिनकी रोगप्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी कम हो. ये वायरस जहां तक के नॉर्मल इंसान को जब अफेक्ट करता है तब ये बिल्कुल घातक नहीं होता. लेकिन दोस्तों, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखने की जरूरत है ताकि ये वायरस यानी कि HIV एड्स ना कॉज करे. सेकेंड मोस्ट कॉमन मिथ इज अगर माँ या पिता या दोनों HIV पॉजिटिव है तो वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकते. तो ये सबसे बड़ी गलत धारणा है जो सोसाइटी में फैल रही है, क्योंकि आज मेडिसिन और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इवन दो पेरेंट्स आर पॉजिटिव, जरूरी नहीं कि उनका बच्चा पॉजिटिव आए. अगर माँ को ये जानकारी है कि वो HIV पॉजिटिव है तो वो कंसीव करने से पहले डॉक्टर से जाके मिल सकती है. और अगर किसी कारणवश अगर उनको पता नहीं होगा तो आफ्टर कंसीविंग वो ये मेक श्योर कर सकती है कि HIV की टेस्ट जरूर हो जब वो डॉक्टर के पास जाए. उसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आपकी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हो सकती है यानी सिजेरियन के थ्रू हो सकती है ताकि बच्चे को HIV होने का खतरा कम हो. उसके बाद डिलीवरी के बाद भी स्तनपान की जगह आप बॉटल फीडिंग यानी कि किसी दूध पीने की बॉटल से आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं ताकि बच्चे को HIV का संक्रमण ना हो. नंबर 3, आपने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हम उस इंसान को देख के बता सकते हैं कि उसको HIV है या नहीं, या उसको एड्स है या नहीं. तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि आप किसी इंसान को देख के नहीं बता सकते कि उसको HIV है या नहीं, क्योंकि एड्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो थकान, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, ये काफी कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो एड्स के पेशेंट में दिखाई दे. या फिर कभी कभी तो सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते. कोई कह ही नहीं सकता कि उसे एड्स है या नहीं. सिर्फ देखने से आप कभी नहीं कह सकते कि उसे वो बीमारी है या नहीं. नंबर 4, जो कि सबसे कॉमन चीज है, हमें जरूर अभी तक ये पता चल गया होगा कि HIV वायरस किन किन चीजों से फैलता है, बट क्या आपको पता है कि किन किन चीजों से नहीं फैलता? ये नॉर्मल चीज जैसे बेडशीट शेयरिंग, हैंकरशीट शेयरिंग, टॉवल शेयरिंग, यानी कि उस इंसान को सिर्फ छूने से, जैसे कि बाय हगिंग और किसिंग, द वायरस डज नॉट स्प्रेड बाय ऑल दीज मीन्स. इट डज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, फ्लाइज, शेयरिंग फूड, शेयरिंग वाटर. तो जो एक गलत धारणा है कि HIV इंसान से दूर रहो या उसे एकदम आइसोलेट कर दो, उससे समाज से, सोसाइटी से दूर कर दो, तो वो बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि वो इस इंसान के मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है. क्योंकि जबकि इसका कोई बेसिस ही नहीं है साइंटिफिकली, ये वायरस इन सब चीजों से फैलता ही नहीं है, तो क्यों उस इंसान को हम सोसाइटी से और इन सब चीज से अलग करें? तो बेसिकली ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि इट स्प्रेड्स बाय ऑल दीज मीन्स. तो हमें अब से ध्यान रखना है कि एड्स के पेशेंट को हम इंक्लूसिव फील कराएं. हम फील कराएं कि जो उसको बीमारी हुई है वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है और उससे हमें कोई खतरा नहीं है. तो वो जैसे पहले था वैसे ही हमारे लिए अभी भी है. Myth number 5. A lot of people say that AIDS is a disease of gays. It is a gay disease and straight people don't have to worry about it. यानी कि एक साधारण मेल या साधारण फीमेल के अगर शारीरिक संबंध हो तो उन्हें एड्स का खतरा नहीं है. ये सिर्फ गे लोगों को अफेक्ट होने वाली डिजीज है. बट ये सबसे बड़ी गलत धारणा है, क्योंकि 80% जो संक्रमण हो रहा है दुनिया में एड्स का, इट इज बिकॉज ऑफ हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट रादर देन होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो irrespective of their sexual orientation or their sexual preferences, AIDS can occur to anyone and everyone. So the major key point is कि हमें practices like safe sexual contacts, that is
protected sexual contacts and avoiding unprotected sexual contacts is the main key to prevent AIDS. Myth number 6. A lot of urban myths हमें आजकल सुनाई देते हैं, जैसे कि taking shower after sexual activity or taking oral contraceptive pills may prevent AIDS. But that is actually a myth, क्योंकि till now it is only proven that use of barrier methods, that is condoms, can prevent AIDS. Government has also given a facility that is काफ़ी कम प्राइस में condoms का सप्लाई गवर्नमेंट दे रही है, जिसका नाम है निरोध. तो ये फैसिलिटी का यूज करके वी शुड मेक श्योर दैट वी प्रिवेंट एड्स. Myth number 7. It's the most common myth and it's the most feared one. लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपको एड्स है तो आप कुछ खास साल जिएंगे नहीं, यानी कि एड्स इज अ डेथ सेंटेंस. Even though AIDS is not curable, but it is definitely treatable. यानी कि आप एड्स आपको होने के बावजूद आप काफ़ी लंबे समय तक जी सकते हैं, आप एक हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं. तो द ओनली की इज अर्ली इंटरवेंशन. जल्द से जल्द आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें कि अगर आपको ये डिजीज़ है तो आप ये डॉक्टर के पास जाए, टेस्ट करवाए, मेडिसिन टाइम टू टाइम ले, जिसके वजह से आप ये डिजीज़ काफ़ी हद तक अपने अंदर कम कर सकते हैं. एड्स के बारे में इतना सब जानने के बाद लेट अस नो दैट हाउ टू प्रिवेंट एड्स. सबसे पहली चीज इज हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन. हम अपने अगल बगल के लोगों को एड्स आखिर है क्या, वो कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता, उससे कैसे बचा जा सकता है, ये हम बता सकते हैं. सबसे पहली चीज इज अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी एंड प्रमोटिंग यूज ऑफ कॉन्डम्स. Second cheese is if you are an organ or blood donor, then make sure that the blood is being tested for HIV. अगर आप काफ़ी बार IV needles का इस्तेमाल हो रहा है आपके साथ, तो फिर you should make sure that the IV needles used are being sterilized and properly disposed. Also, if a woman wants to conceive, और अगर उनको पता है कि वो HIV पॉजिटिव है, तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि बच्चे को संक्रमण का खतरा कम हो. उसी के साथ साथ अगर आपको पता है कि आपका शारीरिक संबंध या आपको नीडल इंजरी हो गई है किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के वजह से, या आपका उनसे कांटेक्ट हो गया है, तो आप डॉक्टर से इमीडिएटली अप्रोच कीजिए और वो आपको मेडिसिन देंगे, जिससे हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं. तो वो जल्द से जल्द हो ताकि आपको HIV होने का खतरा और एड्स होने का खतरा बहुत ही कम हो. ऐसा कहते हैं कि अगर आपको इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो आपको एड्स जैसी बीमारियों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है. बट डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसका एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसे कहते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. तो उसके तहत आपको टेस्टिंग, आपको दवाइयाँ एड्स की, ये दोनों भी चीज़ें, उसी के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक काफ़ी कम प्राइसेस में गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है. तो आप अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में इस प्रोग्राम के बारे में यू कैन गो एंड यू कैन आस्क देम. ऑल्सो हमें पता है कि एड्स जैसी बीमारी इम्यूनो डेफिशिएंट, यानी कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा घातक होती है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है. तो इस कोरोना के काल में और इन जनरल ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप अपनी सेहत का अपना काफ़ी ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाएं. किसी कारण अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो पेट भर के नाश्ता करके बाहर जाएं. आयुष मंत्रालय द्वारा इम्यूनिटी को टिकाए रखने के लिए जो चीज़ें बताई गई है उसे फॉलो कीजिए. घर पे योगा, प्राणायाम जैसे 30 मिनट्स की कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप कीजिए, जिसके वजह से आपको एड्स क्या कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है. तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे हेल्थी एंड थैंक यू सो मच.